everyone, welcome back to Get Set. In this session, we'll primarily cover your recently held EMRS based subjective come objective exams है ना, जो tier 2 के आपका subjective and objective exam हुआ है उसको हम इस session में discuss करेंगे. And before like proceeding with the question paper and solving it, उससे पहले the first victory we would like to celebrate for all the aspirants who have written the exam. I mean, जिन सब ने like all of you who have taken the exam, basically like you have applied for it, you got selected, then you've taken the exam. ठीक है, सबसे पहली victorious बात आपके लिए ये है. You know, whenever we are preparing for something, because I know कि जब भी हम teaching exams की preparation कर रहे होते हैं या फिर आप किसी भी competitive exam की preparation कर रहे होते हो तो you are not having a narrow scope. Like aspirants never keep a narrow scope. Instead, they have like expanded horizons कि भाई KV का आ रहा है, NV का आ रहा है, EMRS आ रहा है, GSSB आ रहा है, आपका कोई state based teaching exam आ रहा है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या किसी भी particular state का आपका teaching exam आ रहा है, तो आप उन सब के लिए जो है अपने आप को overall eligible करते हो, ठीक है. So you are on a journey and whichever exam is coming, you're facing it. ठीक है, you are fumbling or you are moving, आपने exam attempt किया है, so the first thing is that, okay, first celebration is that. ठीक है, तो second thing आती है कि whether you will pass the exam or not. Every time I say to like all the competitors who are learning with me, I say that always stay motivated. आपको motivate करने के लिए other than your parents, other than your well wishers, कोई और नहीं आएगा. ठीक है, आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना होगा. एंड डेफिनेटली इफ यू आर लाइक लेबोरियस इनफ, इफ यू डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, हो सकता है आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बट योर द अलाइनमेंट और द डायरेक्शन यू आर मूविंग टूवर्ड्स इज रॉन्ग, या फिर आप स्ट्रैटेजी गलत यूज कर रहे हो, तो वो सब आपको लाइक इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. हो सकता है इट कैन लीड यू टू सक्सेस बट इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स. So in these days, in the modern era, जो आपका स्मार्ट वर्क है वो आपके हार्ड वर्क को रिप्लेस कर रहा है. Try to understand the point I am saying. आपने एग्जाम फेस किया है, well and good. The first victory is that. ठीक है, सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि आप एग्जाम देने गए हो. Second thing is whether you'll pass or fail. Now that is something I would relate. If it is meant for you, it will come to you. Mind my words, if it's meant for you, it will come to you. The mood of the examiner क्या होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, ये पता चल गया है, सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना, कॉम्पोजिशन पार्ट को कैसे प्रोफेसर या किस तरह का एग्जामिनर जो है असेस करेगा, लिटरेचर पार्ट ऑफ कोर्स अलग तरह के प्रोफेसर्स जो हैं एग्जामिनर्स जो हैं वो असेस करेंगे. तो ये सब टेंशन आप छोड़ दीजिए. अब You've given the exam, ठीक है, you did your best, ठीक है, बेस्ट नहीं दिया है तो stay in the queue and अपना बेस्ट दीजिए. जब तक you have a chance, definitely you'll get success if you are like on the right way, अगर आपका direction ठीक है. ठीक है, so do not waste your hard work, put yourself in the right direction, ठीक है. And through these sessions, I am also like coming up with the quality content like which is the demand of the hour today. ठीक है, जो आज के आपके डिमांड्स हैं एग्जाम्स की, इतना वर्सेटाइल तरीके से एग्जाम आता है. अभी भी जैसे आपको पता है हमने कुछ वीडियो सेशंस भी किए थे जो लिटरेचर के टॉपिक्स जो और ऑथर्स हमने डील किए हैं, उनमें से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिले हैं. ठीक है, आई नो इट वेरी वेल दैट लाइक वी कुड गिव यू ओनली अ नंबर ऑफ लेसन्स, ठीक है, दैट इज वाई इट वॉज टोटली अ फ्री बी थिंग फॉर यू, but we were supporting you somehow. ठीक है, so this way only we'll keep doing it and will enhance and align ourselves with the syllabus also, and हम इतना अच्छे लेवल का प्रिपरेशन करेंगे that you will feel that yes, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब लिटरेचर समझ आ रहा है. ठीक है, so stay tuned for all this and चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक पैसेज है, दिस इज ऑफ 60 मार्क्स ऑफ कोर्स, दिस इज द सब्जेक्टिव पार्ट.
आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसे आपको पढ़ना है। My world was circumscribed by the boundaries of our house in Vinayak Street. So basically एक narrator है, ठीक है, who is portrayed as a boy. वो हमें questions से देखने को मिलता है और देखा जाता है like he has a family where his uncle and aunt are portrayed, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये इस narrator के point of view से है ये सारी चीज, ठीक है। That when you read the passage you'll get to know that the uncle's joy is lying in his religious temperance, है ना, उनका जो temperament है, religious temperament है, उसमें उनका joy जो है ज्यादातर inclined है। and whenever the innocent child like mimics his uncle, so his uncle feels कि wow it's a spiritual sign, है ना, कि उसके इस लड़के का भी जो है कि inclination है towards spirituality, ठीक है। सो दिस थिंग इज देयर बेसिकली। तो बहुत ईजी है। वाई डिड अंकल गॉड गेट ओवरवेल्म्ड विद जॉय? अब सबसे पहले ये है कि अंकल इतने खुश क्यों हुए थे, ठीक है। व्हेन हिज अंकल सो द बॉय मटरिंग इमेजिनरी प्रेयर्स विद हिज आईज शट, so his uncle became ecstatic. so ecstatic वर्ड से आपको यहाँ पे जॉय वर्ड को रिलेट करना था, ठीक है। तो ये रीजन आप बता देंगे फॉर 1 मार्क। देन what did he convey to aunt? तो इधर भी ये सिंपली लिखा हुआ है ना, that cried aloud to my aunt, इधर से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। that see that fellow how well he prayed, देखो इसको कितनी अच्छे से ये प्रेयर करता है, हमें इसको कुछ श्लोक भी सिखा देने चाहिए, ठीक है, जरूर से भी जरूर आगे जाकर ये सेंट बनेगा, है ना। तो वही क्वेश्चन अगला बन गया है कि what future did uncle envisage for the boy? that he is someday going to be a saint, ठीक है। बिकॉज he used to imitate his uncle so well during his formative years, which made his uncle think that definitely he is going to be a very dedicated devotee in the coming years. तो ये आंसर आप दे सकते हो। What did the boy expect from uncle after the latter had finished lunch and was resting? यानी कि जब उसके अंकल ने ये सब अपनी जो डेली का अपना रिचुअल है वो फॉलो करके जब वो रेस्टिंग पे जा रहे थे खा पी कर, उसके बाद जो है वो बॉय जो था वो क्या एक्सपेक्ट करता था अपने आप से। तो जैसे ही वो रोजवुड बेंच पर आकर लेटते थे, तो जस्ट व्हेन ही फेल इनटू अ डोज, जैसे ही नींद आने को होती थी, द बॉय यूज्ड टू डिमांड लाइक हिज अंकल, टेल मी अ स्टोरी, मुझे कोई कहानी सुनाओ, ठीक है। और यही बेसिकली जो आपको बताना है कि ही यूज्ड टू इंसिस्ट हिज अंकल ऑन टेलिंग हिम सम स्टोरी बिफोर डोजिंग ऑफ, ठीक है। द सेकेंड पैसेज वी कम ऑन। अब जो सेकेंड पैसेज है बेसिकली ये जो संस्कृत ड्रामा था उसका जो डिक्लाइन है, ठीक है, उसके बारे में बताता है दैट हाउ लाइक ग्रेजुअली ओवर द इयर्स द संस्कृत ड्रामा डिक्लाइंड, ठीक है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे, इसमें सारा रीजन बताया गया है दैट द अफगान्स एंड Turks they established themselves on the throne of Delhi, ये सबसे पहला रीजन था, ऐसे ऐसे चीजें होती गई, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो है सोसाइटी में डिविजन्स होती रही, स्ट्राटास जो है लैंग्वेज के बेस पे एक डाइकॉटमी फॉलो करने लगे और लिंग्विस्टिक डाइकॉटमी की वजह से जो है चीजें अलग हो गई। Why did the संस्कृत ड्रामा डिक्लाइन? तो सबसे पहला रीजन आप कहाँ देंगे, ये दे सकते हैं that declined long before the Afghans and Turks established themselves on the throne of Delhi. The first reason was this. Second reason आप दे सकते हैं साथ में the ever widening gap between the language of the Sanskrit drama and the language of day to day life. यानी संस्कृत ड्रामा में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो अलग रहती थी और डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो अलग रहती थी, जो ज्यादा डोमिनियरिंग थी, ठीक है। तो ये एक और रीजन था संस्कृत ड्रामा के डिक्लाइन का। तो इन दोनों को जो है you can blend both of these reasons to make the appropriate answer. What accounts for the widening gap between Sanskrit and the popular languages? अब देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि एक गैप बन रहा था संस्कृत एंड डे टू डे या एवरीडे लैंग्वेज में, लेकिन इसका रीजन क्या बताया, ठीक है। इसका रीजन ये बताया है जैसे कुछ ओल्ड प्लेज थे, दैट इन सम प्लेज वी कैन सी दैट संस्कृत एंड वन और मोर Prakrit, that is popular variation of Sanskrit. So in the same play, educated people speak in Sanskrit
ठीक है, तो एक स्ट्राटा, एक यहाँ पे क्लास डिवीजन हो गया है कि एजुकेटेड पीपल विल स्पीक इन संस्कृत एंड ऑर्डिनरी अनएजुकेटेड folk, usually women, though there are exceptions of course, they will speak in Prakrit. So this is like an account for the widening gap between Sanskrit and the popular languages. ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक स्ट्राटा था सोसाइटी का कि the learned people will speak in Sanskrit, while जो अलग मतलब ऑन द सेम लेवल जो अलग तरह के लोग हैं, द सेम ग्राउंड्स, जो अलग तरह की डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, दे आर गोइंग टू स्पीक इन प्राकृत, ठीक है, द वर्नाकुलर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये रीजन था। नाउ इन व्हाट लैंग्वेज डिड द वुमेन स्पीक, तो उधर लिखा ही है यूजुअली वुमेन, लाइक द वुमेन स्पोक इन प्राकृत, वुमेन स्पोक इन प्राकृत, the then existing vernacular form of language. What dichotomy was maintained in the language of a play in those days? तो ये क्या होता था, है ना? तो there was an inherent linguistic dichotomy, you can see, ठीक है, अभी हम देखेंगे that कुछ प्लेज थे, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ अ प्ले इन दोज डेज, है ना? तो प्ले में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया ही गया है, जैसे कालिदास का कोई प्ले आप पढ़ेंगे तो यही देखने को मिलेगा दैट द एजुकेटेड पीपल स्पोक इन संस्कृत एंड ऑर्डिनरी, व्हाइल द अनएजुकेटेड folk यूजुअली स्पोक इन प्राकृत. So there was an inherent linguistic dichotomy which could be stated through these reasons. ठीक है, तो ये वाला रीजन आप दे सकते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड पैराग्राफ है आपका, this is basically underlying the इंडियन सिपोए रिवॉल्ट करके है कुछ, ठीक है, था उसका जो है एसेंस है इसमें. अब आप सबसे पहले देखोगे दैट व्हाई डिड द सिपोज एक्सरसाइज रिस्ट्रेन. ये लोग जो है व्हाई दे वर नॉट रेडी टू अटैक और दे वर नॉट रेडी टू टेक एक्शन. सो दे डिड नॉट बिकॉज पेशेंस एंड फोरबियरेंस था, है ना. व्हाई द सिपोज एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट as guided by their leaders to have patience and forbearance. ठीक है, so in the training part they are told to follow the things like that. ठीक है, तो patience and forbearance की वजह से they were exercising restraint, they were waiting for the right time to act, maybe they were not prepared. ठीक है, and they were, उनको पता है कि किधर और कब अटैक करने का है, तो that is why they were restraining. Okay, now B part, what did the Sepoys feel after being jeered at by women? Now there is an instance here where you see that when the sepoys went to the bazaar, women jeered at them. Hey, on you, your comrades are languishing in the jail and you are here to make the purchases. और तुम इधर आके मतलब परचेज, तुम यहाँ शॉपिंग करने आए हो. योर कॉमरेड्स आर लाइंग इन प्रिजन्स, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, यहाँ पे क्या कर रहे हो. ठीक है, तो इन पे ये कह रहे हैं व्हाट डिड द सिपोइज फील, उनको क्या फीलिंग आई. तो इधर लिखा है क्लियरली दैट द फेमिनाइन टोन्स वर डीप इनटू देयर हार्ट्स. ठीक है, they could not further withstand this humiliation. तो basically आप बोलेंगे that the sepoys felt humiliated and they were deeply pained at what they heard and why did the women jeer at them. ठीक है, तो इस तरह से एक ब्लेंडिंग आप कर लेना, द राइट ग्रामेटिकल ब्लेंडिंग. ओके, सी पार्ट, व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स टू द फेमिनाइन टॉन्स. अब ये टॉन्स जो है इन्होंने इनके ऊपर किया है, बट व्हाट वाज द रिजल्ट. Now they could not further withstand, उनसे ये बेइज्जती जो है सहन नहीं हुई. तो आगे आंसर आ गया है इसका कि क्या किया उन्होंने. Meetings were held at night and plans finalized. The dawn of the new day brought a new era. एक नई क्रांति लेकर आया अगला दिन. The jails were soon broken in. The convicted comrades were set free and the British officers were killed. So you'll straight away write that the response to feminine taunts, basically initially what they did is they were very calm and composed. तो ये सब मत लिखना उसमें, आप बेसिकली यही लिखना जब वो उनसे पूछेंगे ना. ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये एक्शन हुआ था एक्चुअल में. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनो क्या आंसर होगा. The response to feminine taunts was serene and calm and composed response, that they did not exactly reciprocate or they did not retaliate
to their response because they were so well trained, है ना, that they know when and where to act. So the feminine tones just act as a matter of just acted as a matter of like encouragement. ठीक है, that now अब बहुत हुआ, तो उस तरह से आपको ये आंसर लिखना, ये एक्शन मत बताना, लेकिन सिर्फ ये लिखना that they were composed, ठीक है, and they did not like act in that way, ठीक है, because they are like well disciplined and trained soldiers. What must have been similar to the Indian Sepoy revolt and the fall of Bastille in France? तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे convicted comrades were set free and the British officers were killed, government bungalows were burnt down, telegraph wires were cut, तो यही सब हुआ था in the Bastille of France, ठीक है, जो आपको इधर देखने को मिला है ना इन द इंडियन सिपोय रिवॉल्ट, यही इक्वल हुआ था इन द बास्टिल ऑफ फ्रांस बिकॉज ऑफ द राइजिंग, द अपराइजिंग ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, उन सब ने मिलकर जो है अलॉन्ग विद द इंडियन सिपोइज उन्होंने सबने जो है एकदम से धावा बोला था, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड, इट वाज लाइक गेटिंग अवे फ्रॉम द कोलोनाइजर्स, तो ये सब जो है उस टाइम पे भी हुआ था इन फ्रांस, तो ये एक कॉमन एक सिमिलैरिटी जो है आपको देखने को मिलेगी इन इंडियन सिपोय रिवॉल्ट अलॉन्ग विद द बास्टिल ऑफ फ्रांस. सो द डॉन ऑफ द न्यू डे बिगिन, the jails were soon broken in, the convicted comrades were set free and the British officers were killed. तो ये सब क्यों हुआ था? बिकॉज मीटिंग्स हुई थी ना, तो इसीलिए तो शुरू में जो है रिस्ट्रेंट कर रहे थे कि नहीं अभी एक्शन नहीं करने का है, फिर मीटिंग हुई है उसके बाद एक्शन हो, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द पैरा. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डिमांड्स यू टू राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट. इधर आपको 100 सेट्स ऑफ बुक्स किसी ने ऑर्डर किया है, ठीक है, from Rachna Books and this address, and he has only sent you 50 sets. So a letter of complaint to the manager of the publishing house is to be written. So if you've done your composition part है जिधर आपका letter writing and all रहता है, अगर वो आपने अच्छे से किया है तो you'll be able to handle it. Now your friend Rakesh Kumar has invited you to his birthday party. इधर आपका एक informal letter देखने को मिला है, ये भी आप इजीली जो है कंपोज कर सकते हैं अगर आपने लेटर राइटिंग प्रैक्टिस किया है, फॉर्मेट्स एंड ऑल को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ठीक है. अब हम 6th वाला जो आपका पार्ट है इसको हम डील कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से हम इनको जो है सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिस्ट डैश फॉर द लास्ट 10 years or more. You will straight away write the artist performs for the last 10 years or more. By the time you reach the spot, the criminal dash from the spot. The criminal will have run away from the spot. Okay, next let's see. The friend said to me, wow, you won the jackpot. So इसको कैसे करना है? Direct to indirect speech में करना. Jackpot, you can write like that. ठीक है? The friend exclaimed to me with surprise that I had won the jackpot. Change the given sentence from indirect speech to direct. The pickpocket pleaded with the magistrate that he should be given a second chance. ठीक है? So you can say the pickpocket sent to the magistrate. ठीक है? Pleaded है ना यहाँ पे, तो you'll say the pickpocket sent to the magistrate, please give me a second chance. Okay, the pickpocket said to the magistrate, please give me a second chance. तो इस तरह से जो है आप लिखें. I hope all of these are clear to you. Next, you have to identify the clause of the underlined part in the given sentence. Whatever you have been saying is not clear to me. तो underlined part आपका ये है, और इसके बाद आप देखोगे तुरंत आपको एक वर्ब देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हो गया है ये इस वर्ब का. अल्टीमेटली ये आप नाउन क्लॉज कहेंगे. कौन सा क्लॉज कहेंगे? नाउन क्लॉज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इज जो है एक वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है. हमें पता है कि नाउन क्लॉज की कुछ 3 से 4 कंडीशंस होती हैं और उन्हीं में से एक कंडीशन जो है सब्जेक्ट वाली है और ये सेटिस्फाई होती है. Now identify the clause of the underlined part in the given sentence. The place where the collision took place is close to my house. तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि द प्लेस जो है ना इसका डिस्क्रिप्शन है, दैट वेयर द कोलिजन टुक प्लेस, जहाँ पे वो मुठभेड़ हुई थी,
ठीक है, उस जगह की बात हो रही है, तो आप इसको नेसेसरीली कौन सा क्लॉज कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये नाउन, इस प्लेस को, नाउन जो है यहाँ प्लेस नाउन है, इसे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर, ठीक है, अपने सब्जेक्ट वर्ब वाले क्लॉज में. नाउ चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. इन विच स्पोर्ट्स इवेंट डिड दे गिव यू अ ट्रॉफी? You can straight away say, in which sports event were you given a trophy by them? Okay, so you'll straight away say that in which sports event were you given a trophy by them? Were you given a trophy by them? Okay, because here you have to like make it like from what do we say, interrogative से आपको एक assertion में बदलना है, ठीक है. तो वो होता है ना कि एजर्टिव में आपको वाई वर, तो ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू होता है ये क्वेश्चन मार्क होता है, और उधर जब आपको इसको सिंपल में कन्वर्ट करने का रहता है इन एजर्टिव, सो यू से वाई यू वर, है ना, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू का कॉम्बो इधर नहीं बनता है डॉट वाले, ठीक है, दिस यू नो. ओके, नाउ चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस. एट द एयरपोर्ट यू वर ट्रबल्ड बाय द कस्टम्स स्टाफ अ लॉट. सो so you can straight away say, ठीक है, the customs staff troubled you a lot at the airport. Next, remove to and rewrite the sentence. He is too arrogant to listen to your plea. तो हमें पता है ना, to को जब आपको रिप्लेस करना रहता है तो आपको so that वाला कॉम्बिनेशन पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा फाइनली, he is so arrogant that he will not listen to your plea. This would be the correct answer. Now change the given interrogative into an assertive sentence. Were you given the job only to make money? ठीक है, तो आपको इसको assertive में चेंज करना है. देखिए जब आप चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस का, तो याद रखना कि मीनिंग आपको सेम रखना रहता है, ठीक है, आपको उसका सेंटेंस का भाव चेंज नहीं करना, उसको मतलब जो उसका मीनिंग है वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है. सो व्हाट विल यू से, या were you given the job only to make money? So you will simply say, you were given the job only to make money. You were given the job only to make money. Okay? He bought the car that belonged to his friend, which was maroon in color. Okay, you can say it that way. Now, 9th का हम देखेंगे, rearrange the parts. आपको यहाँ पे rearrangement करना है, ठीक है, और rearrangement जब आप करेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो द प्लेयर हु हैज वन द गेम हैज वर्कड फॉर इयर्स टू रीच दिस स्पॉट. द प्लेयर हु हैज वन द गेम हैज वर्कड फॉर इयर्स to reach this spot. This would be the correct answer. Rearrange the parts to write a meaningful sentence. Again, it is like that. The country is now on a course to realize its potential in all spheres. This is the correct answer. Okay. Insert the verb that agrees with the subject. Now, 2/3 of the city, I'm not able to read it. Where is it? 2/3 of the city dash in ruins even now. So the correct answer is. ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, 2/3 of the city. Look, they are part of a complete entity, है ना, एक पूरी, they're part of an entity basically. So एक ही चीज का पार्ट है ये फ्रैक्शन, तो आप इसको is कहेंगे, ठीक है. The committee dash divided in the contentious issue. तो देखिए यहाँ पे जब कमिटी होती है और वो एक मत होके कोई डिसीजन लेती है, या फिर उनका जो ओवरऑल जो डिसीजन होता है वो लाइक अनैनिमस होता है, तो आप उसको सिंगुलर तरीके से लेंगे. लेकिन द कमिटी डिवाइडेड है, यहाँ पे डिवीजन की बात हुई है, तो आप इसको वर एड्रेस करेंगे. That the committee were divided, है ना, एक डिवीजन इन्होंने पहले ही दिखा दिया है, एक बंटवारा दिखाया गया, तो आप इसको वर लेंगे. Now, use an appropriate connector to complete the given sentence. A dash he expresses regret for his remarks, I will not forgive.
ठीक है. सो ही विल, हियर यू कैन से इवन इफ, भले ही वो ऐसा करे, आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे नहीं भूलूंगी. इवन इफ, इवन दो, यू कैन से दिस वे ऑल्सो. ठीक है. यूज एन एप्रोप्रिएट कनेक्टर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. डैश बीइंग अ स्कल्प्टर ही ऑल्सो राइट्स पोइट्री इन स्पेयर टाइम. तो वो है तो एक स्कल्प्टर, लेकिन पोइट्री भी लिखता है. तो आप सिंपली कहेंगे besides being a sculptor, he also writes poetry in his spare time. Identify the tense of the underlined part in the given sentence. Bravo! You have inflicted a crushing defeat on the opponent. So have inflicted. तो ये क्या रहेगा आपका present of. ठीक है. Have inflicted. Now, identify the tense of the underlined part. The officers will be proceeding. So it's like future and ing है तो continue. It's future continuous tense. ठीक है, ये आपने देख लिया होगा. Now we'll discuss on the best part of the entire scene in the examination scenario. ठीक है, सबसे best part which I feel, ठीक है, and which like you have been connected, the reason of your connection here on Get Set. ठीक है, चलिए बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे who wrote the lines east is east and west is west and never the twain shall meet. In the context of colonialism, what do these lines signify? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये लाइंस हैं ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, दीज आर स्पोकन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईस्ट ईस्ट रहेगा, वेस्ट वेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों की कल्चरल डिवीजन है, दोनों कल्चरली डिवाइडेड हैं, दोनों की कल्चरल वैल्यूज अलग है. ठीक है, तो इसीलिए ये कभी भी नहीं मिल सकते. ठीक है, तो एक क्रिटिकल नोट पे जो है किपलिंग ने इस बात को कहा. The Western Union has it. The Western Union and their allies, they all have their own reasons. ठीक है, that why they say कि दोनों अलग. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईस्ट ईस्ट रहेगा, वेस्ट वेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों की कल्चरल डिवीजन है, दोनों कल्चरली डिवाइडेड हैं, दोनों की कल्चरल वैल्यूज अलग है. ठीक है, तो इसीलिए ये कभी भी नहीं मिल सकते. ठीक है, तो एक क्रिटिकल नोट पे जो है किपलिंग ने इस बात को कहा है. ठीक है, तो इधर आप देखोगे सीधा सीधा ये ही बोला है कि दे कैन नॉट मीट, ऐसा ड्यू टू कॉलोनियलाइजेशन एंड ऑल इट हैपेंड. ठीक है, बिकॉज दे कंसिडर देम इंफीरियर. ठीक है, देयर वर वेरियस ग्राउंड्स टू से दिस. ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, सो यू विल सिंपली से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ colonialism these lines signify the cultural divide among the east and western part of the world. ठीक है, which has its basis due to various values and traditions that people follow and the notions that west exhibits towards the eastern half. ठीक है, तो दिस रीजन यू कैन से. लेकिन अभी ये जो नोशन है ये चेंज हो रहा है. So this is like critically you can say it like अभी जो है चीजें they are on cultural grounds है ना, चीजें evolve हो रही हैं and there is an expansion of humanitarian. So the things may be that eastern and western है ना, but according to this colonialism वाला aspect आपको लिखा aspect आप. ठीक है, चलिए. Only connect is the epigraph and central theme in E.M. Foster's novel Howard's End. What do these lines signify in Foster's oeuvre? ठीक है, अब Foster's का जो oeuvre है, like his the meaning he wants to convey is in all of his like entire work के through वो क्या कहना चाहते हैं. तो Howard's End में आप यही कहेंगे basically, है ना, जो the theme only connect जो है, only connect. अब यहाँ पे only connect is talking about the connection of mind plus heart. कनेक्शन ऑफ योर इमोशंस एंड इंटेलेक्ट. ठीक है, कि जब कहीं ये इट डजेंट मैटर यू आर बिलोंगिंग टू ईस्ट और वेस्ट, आप कहीं से भी हैं. ठीक है, बट इफ यू हैव अ रियल कनेक्शन फॉर ह्यूमैनिटी देन यू विल बी एबल टू लाइक कनेक्ट एक्चुअली. लाइक अगर इमोशंस और इंटेलेक्ट आपके लाइक कनेक्टेड हैं तो यू विल हैव अ बेटर वाइडर व्यू फॉर सोसाइटी. दिस इज व्हाट
लाइक एग्जैक्टली अगर मैं कहना चाहूँ, E.M. Forster wants to say through this phrase, ठीक है, इट इज द एपिग्राफ एंड ओनली कनेक्ट, क्या कलेक्ट करना है, इमोशंस और इंटेलेक्ट का कनेक्शन, ठीक है, फॉर अ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये होवर्ड्स एंड में जो वर्क है, इन लाइंस का मतलब यही है। नाउ व्हाट इज malapropism एंड फ्रॉम विच कैरेक्टर इन शेरिडन्स द राइवल्स डज इट ड्रॉ इट्स करेंसी, है, किधर से ये वर्ड जो है निकल कर आया है। तो रिचर्ड शेरिडन का एक वर्क था द राइवल्स, उसमें मिसेस मालाप्रॉप करके एक कैरेक्टर है, ठीक है, और उनको क्या है, she uses wrong words, like if she has to use auspicious she will use suspicious, ठीक है। अगर उनको लाइक इलिटरेट यूज करना है तो वो ऑब्लिटरेट बोले, ठीक है। अगर उनको मतलब देर इज लाइक वन मोर एग्जाम्पल यू कैन से ऑलिटरेट, तो वो एलिगेटर बोल देंगी, मतलब इस तरह से वो रॉन्ग वर्ड को स्पेल, रॉन्ग वर्ड को जो है बोलती हैं, ठीक है। एंड दिस यूसेज ऑफ द रॉन्ग वर्ड रिएक्ट सिमिलर, ना, सिमिलर तो है बट गलत है, तो इसका जो यूज है, दिस इज कॉल्ड malapropism, व्हेन यू प्लेस रॉन्ग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ राइट वर्ड्स एंड दोज wrongly spoken words create humor, तो वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यू वर सपोज्ड टू राइट द सेम थिंग। नाउ व्हाट hamartia और tragic flow in Macbeth is Macbeth suffering from, how does it lead to his tragic end। अब हमें पता है कि जो भी ग्रेट हीरोज होते हैं, है ना, ऑफ स्पेशली इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, हमने देखा है कि उनका कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है जो उनको उनकी डाउनफॉल, उनकी ट्रेजेडी की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पे जो मैकबेथ है उसका फ्लॉ पूछा गया है कि उसमें फ्लॉ क्या है, ठीक है। तो उसका जो है, उसका जो हमाशिया है, जो ट्रेजिक फ्लॉ है, इज अनचेक्ड एम्बिशन, यू कैन से एम्बिशन, है ना, कि उसको ही हैज एन, उसको क्या था, एक एक पावर डायनेमिक्स जो है वहां पे चल रहा था कि इधर इसको द प्रोफेसी ऑफ द विचेस, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ द विचेस हिज माइंड वाज इन अ टोटल कियोस, है ना, जिधर वो एक हमेशा एक अनचेक्ड एम्बिशन था उसका कि उसको किंग बनना है, ठीक है, क्योंकि उसने देखा कि पहले वाली जो प्रोफेसीज थी विचेस की, वो फुलफिल हो गई हैं, जिसकी वजह से he was like taking greater leaps for future, है ना, and he was even becoming violent, है ना, violent तरीके से भी वो सब कुछ कर रहा था और हर चीज को वो नष्ट करता, ठीक है। तो वही जो है आपको इधर लिखना है कि ये उसका कारण बना, दैट reason of his demise. Now discuss the role of a jester in at least one of the Shakespeare's comedies. तो हमें पता है कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं, दे आर नॉट बेसिकली टू डेवलप ह्यूमर, दे आर नॉट बेसिकली टू इवॉक लॉफ्टर, है ना, सिर्फ यही पर्पज नहीं है उनका, रैदर वो अपनी कॉमेडीज के थ्रू भी एक डायडेक्टिक टोन रखते हैं और ऑडियंस को समझाते हैं, ठीक है। नेसेसरली वो कुछ जेस्टर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एज यू लाइक इट में आपको टच स्टोन दिखेगा, ठीक है, जो आपका नेसेसरली आपका कोर्ट सीन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, कभी कभार वहां पर आता है, ठीक है, और वहां पे स्पीचेस देता है विच आर विटी, है ना, जो मतलब ऑडियंस जो है कनेक्ट कर पाती है और जो कंस्ट्रक्टिवली जो है चीजों को क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। सिमिलरली किंग लियर में भी आप देखो, एक फूल नाम से एक जेस्टर है वहां पर भी, और वो भी आता है व्हेन किंग लियर इज लेमेंटिंग ऑन हिज डिसीजंस, है ना, तब भी वो लियर वहां पर आके जो है किंग को जो है चीजें बोलता है और आउटस्पोकनली बोलता है, और उधर उस फूल को बहुत विटी तरीके से देखा जाता है, मतलब विटी उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बहुत डायडेक्टिक टोन पे वो चीजों को एक मोरल चीजों मोरल तरीके से समझा, ठीक है। सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ लाइक ईदर ऑफ देम, ठीक है, यू कैन से शेक्सपियर की कॉमेडीज में बताना है आपको यहाँ पे, तो आप टच स्टोन का एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर ट्वेल्थ नाइट में भी था, ट्वेल्थ नाइट में आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ट्वेल्थ नाइट में फेस्टे फेस्टे करके एक था जेस्टर, ठीक है, उसका भी आप बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि उसने भी जो है एक किस तरह से अपना रोल प्ले किया, एंड
how did he teach society? So he had a different role to play in that too. Now, who gave the idea of Orientalism in literary criticism, and what does the term signify? Okay, so basically this is a notion which was developed, the word was developed by Edward Said. ठीक है, इन्होंने दिया था ये वाला वर्ड, एंड इनका जो टर्म है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? Orientalism is the way of dealing with the Orientals according to Edward Said. So the Western canon, they said that the Oriental part है ना, जो एशिया एंड अफ्रीकन, दिस ये जो आपका ओरिएंटल पार्ट है, दिस इज लाइक एग्जॉटिक है, काफी एग्जॉटिक है, मिस्टीरियस है, लेकिन साथ साथ इंफीरियर है ना। तो ये एक नोशन था of the western canon towards the eastern paths. Okay, this is exactly Orientalism, which was developed by Edward Said. So in a 2-mark answer you can give this answer. Now, what does Derrida's term deconstruction mean in the critical theory? तो जब आप ये लिटरेरी थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है, आप न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़ते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, देन आपका पहले वो फॉर्मेटिव जो आता है आपका लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म है, देन योर हिस्टोरिक क्रिटिसिज्म है, ठीक है, आपका पोस्ट मॉडर्न है, डीकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये सभी जो हैं लाइक दे ऑल हैव देयर नोशंस ऑफ डीलिंग विद द टेक्स्ट, ठीक है। सो इन सब में अब हमें क्या देखने को मिलता है, अगर यहाँ पे पूछा है अबाउट द जैकस डेरिडाज टर्म डीकंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरी में इस टर्म का जो मीनिंग रहता है वो यही है दैट द टेक्स्ट has got multiple layers of meanings, है ना। We cannot say that like the new criticism once said कि the text is a whole, it has everything in itself, don't move outside the text is itself everything, ये नोशन था न्यू क्रिटिसिज्म का। लेकिन धीरे धीरे थ्योरीज इवॉल्व होती गई हैं, और डीकंस्ट्रक्शन एज अ थ्योरी क्या कहती है, दैट the text has got multiple meanings, है ना, don't stick to one meaning, ठीक है। So it is like a mind opener, okay? You will have various ways to interpret one single line, और यही deconstruction जो है as a theory बताती है। So you know, in literature theories are a web of imaginations, and it's definitely a very interactive session. When we will be discussing theories, I'll make a mind map for you जिससे आपको सारी theories, ठीक है। Now, who created the character of Sir Roger de Coverley? What is so distinctive about him? Sir Roger de Coverley का जो कैरेक्टर है वो जोसेफ एडिसन along with स्टील ने डेवलप किया था, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, ठीक है। इनका द स्पेक्टेटर वाला जो आपका पीरियोडिकल था 1711 के आसपास का था ये, ठीक है। तो जो स्पेक्टेटर वाला जो इनका पीरियोडिकल था, हमें पता ही है कि इन्होंने बहुत सारे एसेज कंपोज किए हैं उनमें अपने पीरियोडिकल्स में, ठीक है। तो जोसेफ एडिसन बेसिकली ये क्रेडिट लेंगे सर रॉजर दी कॉवरले वाले कैरेक्टर का, और इसमें ये डिस्टिंक्टिव क्यों था, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन हु वाज लाइक बहुत मतलब उसके अंदर एक ट्रेडिशनल वैल्यूज का ब्लेंड था अलोंग विद द मॉडर्न अपहीवल, ठीक है। एक मॉडर्न टच भी था उसकी वैल्यूज में अलोंग विद द ट्रेडिशनल कल्चर, ठीक है। ही वॉज अ ब्लेंड, ही वॉज अ हाइब्रिड कैरेक्टर, जिसके थ्रू जो है जोसेफ एडिसन लाइक used him as a character to exactly like vent out his emotions and feelings through the essays, ठीक है। he was a humorous character, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब वो लंदन किसी मॉल में जाते हैं, सो ही सो ओवरवेल्म्ड विद द मॉल कल्चर, ठीक है। तो वो लंदन जाकर बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ही इज कैरिंग हिज ट्रेडिशनल वैल्यूज समवेयर इनसाइड, ठीक है। तो ये इस तरह का कैरेक्टर था, हु हैज द चार्म ऑफ द ब्यूटी, द मॉडर्न ब्यूटी अलोंग विद ट्रेडिशनल चार्म, ठीक है। तो इस तरह का हाइब्रिड कैरेक्टर था। नाउ ये इन्होंने यूज किया था बेसिकली टू कन्वे देयर मीनिंग थ्रू द पीरियोडिकल्स। नाउ व्हाट मेजर argument does T.S. Eliot put forth in his seminal critical essay Tradition and Individual Talent?
अब यहाँ पे मतलब आंसर तो आपका 2 मार्क्स का है, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग। तो यहाँ पे जो थॉमस टर्न एलियट का ये वर्क है, बेसिकली ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो इलियट कहते हैं वो यही है दैट नो वन कैन बिकम एन आर्टिस्ट ऑन हिज ओन, rather you need to depend on the traditional works, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को रेफर करना होगा, एंड व्हेन यू ब्लेंड योर creativity along with the traditional charm, then only your work can come out as a masterpiece. So it's an amalgamation basically. So it is the major argument that T.S. Eliot wants to put forth, that uh, and that a particular, a legendary writer is necessarily a blend of the tradition. वहां से अच्छी अच्छी चीजें उठाइए, ठीक है। इमिटेट मत कीजिए, जो बेस्ट पार्ट है वो लीजिए और अपनी तरफ से उसको क्रिएटिवली इनहेंस करके जो है पुट फोर्थ कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द मेजर आर्ग्यूमेंट। नाउ राइट अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ऑन, couple of sentences, right, means 2 sentences, 2 सेंटेंस लिखने हैं फ्रांसिस बेकन्स स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग। तो इनका जब हम ऐसे राइटिंग का स्टाइल की बात करेंगे तो नेसेसरीली इनका स्टाइल जो था वो वेरी अफोरिस्टिक स्टाइल था, ठीक है। अफोरिस्टिक स्टाइल था मतलब बहुत स्लैंट तरीके से अपना मीनिंग कन्वे कर देते थे, दैट सो दैट द ऑडियंस इज नॉट, आई मीन इट डजंट ऑफेंड द रीडर, ठीक है। टेल द स्लैंट, टेल इट, टेल द ट्रुथ, टेल इट स्लैंट, है ना, जो डिकेंसन यूज करती थी, है ना। तो उसी तरह से जो है फ्रांसिस बेकन यूज कर रहे हैं इन हिज स्टाइल्स ऑफ एसे राइटिंग, दैट हिज एसेज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड देर इज नो ऑर्नामेंटेशन, देर इज नो ग्रैंडियोज वर्बोज, है ना, इस तरह का कुछ भी नहीं है। rather it's very minimalistic and aphoristic उनका स्टाइल है, that it is straightforward and easy to comprehend for the रीडर्स, है ना। जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ मैरिज, ऑफ ट्रुथ, इस तरह के उनके ऐसेज हैं। इवन ट्रैवलिंग पे भी है ना। तो जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल लाइक गेट अ लॉट ऑफ प्रोवर्ब्स आपको मिलेंगी, ठीक है। मतलब प्रोवर्ब्स तो आप जितनी मर्जी लिख लीजिए उनके ऐसेज में से, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि ही इज स्पीकिंग लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट। So this was all about the analysis for the subjective part of the exam. Now we will deal about the analysis of the objective part, and we'll try to do it very quickly. Let's see. I hope it's clear. Are you able to read it? Okay. Maybe I am not able to read exactly from there. So I'll just take, I have a printout of the same. ठीक है, तो choose the option which correctly arranges this. ठीक है, तो इसमें options हैं, the thirsty flowers I bring fresh from the showers of seas and streams. इसमें आप आंसर B रखेंगे, आंसर B is the correct answer. You'll be able to form the sentence. Quickly करेंगे because subjective part is also already taken a lot of time. Choose the correct option again. Narration करना है इसमें. The judge asked the accused, why did you drive the car at high speed? So इसमें आप second part को जो है, second option is the correct one. The judge asked the accused why he had driven the car at the right speed. So in narration you need to move to the preceding tense, you know, है ना। narration में आपको tense change करने का रहता है, ठीक है। तो वही आप इसमें करेंगे, voice में नहीं करना होता। Question 3. Choose the option which correctly changes the narration in the given sentence again, and option 4 is exactly the correct answer. Now, next, again a jumbled group is there, and the correct answer is 1. First one, CEAD B. This is the correct answer. ठीक है, अगला आप देखो, choose the option which correctly fills the blank in the given sentence. The rectangular frame dash the picture. So it is like sets up is wrong, sets off the picture is the correct answer. ठीक है, because वो क्या कर रहा है, it is like adding beauty, it is like adding, it is adding beauty to it. Sets off, ठीक है। Next, sixth है इधर question. Choose the option which correctly changes the voice in the given sentence. We shall soon cross the river. इधर fourth marked ही है. The river shall soon be crossed by us is the correct answer. Seventh का हम देखेंगे. I have been working since morning. So since and for का आपको पता ही है ना, FD.
फॉर ड्यूरेशन के लिए होता है SP, सिंस होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मॉर्निंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस जो है एक प्रेपोजिशन बन गया इधर, ठीक है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली रीअरेंजेस द फॉलोइंग, जम्बल्ड ग्रुप आ गया है फिर से। एंड 8th का करेक्ट आंसर आई विल टेल यू, द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, बी पार्ट, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला हम देखते हैं फटाफट से। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लॉड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो हु इज शेली एड्रेसिंग इन दीज लाइन, किसको बोल रही है? द वेस्ट विंड को बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रही है नहीं बोल रहे हैं, द वेस्ट विंड को बोल रहे हैं दैट लिफ्ट मी एज अ क्लाउड। तो यहाँ पे पोएट जो है डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं वेस्ट विंड टू अपलिफ्ट, है ना, क्योंकि वो ही इज लाइक डू नॉट वांट टू फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। नाउ वेस्ट विंड के अंदर लाइक एक पावरफुल फोर्स है ना, वो अपलिफ्ट कर सकती है, तो वही चीज है यहाँ। इन विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे, इन विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे डज फ्रेडरिक हेनरी फॉल इन लव, ये हमने डिस्कस किया भी था ना, बोथ belonging to two warring nations and ultimately both become deserters from the battlefield। एक अलगाव है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, तो ये हमें फेयरवेल टू आर्म्स में देखने को मिलेगा। फॉर हुम द बेल टॉल्स गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रॉबर्ट जॉर्डन अकेला था, कोई ऐसा अलगाव नहीं था, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द अंडरलाइंड इडियम। योर आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर इन दिस सिचुएशन, आपकी बात में दम नहीं है, इट इज unsound. This is the correct answer. In which poem of Keats do the following lines occur? Where are the songs of spring? Where are they? Think not of him. Though haste, they music too. Am I reading it right? Like too blurred from this angle. So, where are the songs of spring? Think not of him. You, though hast they music too. So, ode to autumn is the correct answer. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यही रहेगा, ठीक है। आगे हम इसको और भी इन डेप्थ करेंगे ना जब कीट्स को, तो हम और भी ज्यादा पढ़ेंगे। विच वर्क ऑफ के नहीं भाई, के की नसर वेंजी दरू इज रिटन इन एपिस्टलरी स्टाइल। तो एपिस्टलरी स्टाइल का मतलब ही लेटर राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो एपिस्टलरी से ही पता चल गया, तो आप इसको लेटर्स टू मामा से भी रिलेट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन जूलियस सीजर द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम इज, अब क्या कॉज था कॉन्स्पिरेसी का? जूलियस सीजर हैज वन मेनी विक्ट्रीज एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ वेल्थ टू रोम, नो। ये इतना छोटा सा कारण होता तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों होती, है ना, इतना मतलब इन दोस्तों में इतनी आपस में इतने मतभेद कैसे हो जाते, इतना छोटा सा कारण होता तो। द डिफीटेड नेशंस वांट रिवेंज, नो। द रोमन्स मॉब वांट्स अ चेंज, नो। द आंसर इज कैसियस फियर दैट जूलियस सीजर में बिकम एन एम्परर। तो उसको फियर नहीं था, उसको उससे जेलसी भी थी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो सारा प्लॉट है प्लान कर रहा। In which play of Shaw, King Magnus threatens to abdicate and contest in an election to outwit his prime minister। तो ये एप्पल कार्ट है इसका करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो है कॉमनर्स का मतलब एप्रिसिएशन और क्या बोलते हैं उसको, लाइक कॉमनर्स के बिलीफ के पार्ट पे वो डेमोक्रेटिकली जो है खुद को प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ही वांटेड टू गेन देयर एप्रिसिएशन। नाउ विच नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद डील्स विद द, ये आप बताएंगे, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, एंड यू कैन टेल इन कमेंट्स, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कूली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following Latin American writers did not get a Nobel Prize for literature? This question is disputed, okay, why? Because when you will check the years of the Nobel Prize for literature for all of them, you'll find that all of them received a Nobel Prize in some or the other, okay? Which is why all of them, तो इसमें से कोई आंसर आप select नहीं करेंगे, ठीक है। तो this is a disputed question. Now question 18, which one of the following statements about right, इधर आकर इधर से blur नहीं, अब इधर से नहीं है, anyways I'll read it. In which
I'll just read it. Okay, question number 18. Which one of the following statements about writing ability is not true? तो इसमें a business letter can begin with dear sir and end with yours sincerely. This is not true. You cannot say it this way. ठीक है, आप बिजनेस लेटर में ये नहीं लिख सकते हैं. दिस इज टोटली रॉन्ग एज कंपेयर टू दी अदर ऑप्शंस. नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वर्ड्सवर्थ ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी? तो इधर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये कि वर्ड्सवर्थ का जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो इसी में तो वो है कि द क्रिम्सन जॉय ऑफ योर बॉयहुड डेज आर फेडिंग, है ना, जो क्रिम्सन रेडियंस होती है फेस पे, जो और जो बच्चों का एक नेचर के साथ कनेक्शन होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वो कनेक्शन दूर होता चला जाता है टू नेचर, है ना, तो उधर जो है ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है इस पे, तो इसीलिए नॉट ट्रू है दैट द चिल्ड्रन मैच्योर एंड दे फॉल इन लव विद द फिजिकल एस्पेक्ट. ऐसा नहीं होता है. इसी चीज को तो वर्ड्सवर्थ लिखना चाहिए कि काश ऐसा हो. ठीक है, identify the clause of the underlying part of the given sentence. Who will not get wet if it rains so heavily, है ना, if it rains so heavily, this is a clause of condition. अगर ऐसा होता है, adverb clause of condition, कि ऐसा होता है तो कौन गीला नहीं होगा, so it is necessarily an adverb. Now, which African novelist, a Nobel Prize winner 1991, deals with the theme of apartheid and racial and which kind racism, caste discrimination, I don't know, इधर एक word missing है, but 1991 की वजह से you can straight away find Nadine Gordimer as the correct answer. ठीक है, he was also African, but here Nadine Gordimer is the correct answer because of this year. इनको इस year में मिला. Next, in Arthur Miller's All My Sons, Joe Keller supplied dash to the armed forces. तो वो क्या सप्लाई करते थे? ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे क्रैक्ड पिस्टन हेड्स का सप्लाई करते थे. ठीक है, Kellers for the aircraft. ठीक है, क्रैक्ड पिस्टन हेड्स इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर. नाउ क्वेश्चन 23. इसमें प्रोपेलर्स फॉर द एयरक्राफ्ट भी मतलब आता है, ठीक है, बट क्रैक्ड पिस्टन हेड्स इज मोर एप्रोप्रिएट, वेयर एज 3 का भी मेंशन है इन द टेक्स्ट, in an indirect manner. Now let's see what they do. Question 23, identify the clause. It is good to know that there was no loss of life in the fire, so it is noun clause only and it's correct. Question 23, yeah, so हमें पता है कि हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नो एक वर्ब है और उसी का ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे लाइक एक वर्ब को जब ये सर्व कर रहे होते हैं, तो ये आउट ऑफ द 4 ये ऐसे 2 कंडीशंस होती हैं, विच इज वाई वी कॉल देम एज अ नाउन क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट, which early novel of R.K. Narayan does deal with the middle class family facing marital discord, women suffering etc. So in Dark Room में क्या है, सावित्री है, सावित्री नाम की एक लेडी है, ठीक है, एंड हर डोमिनेटिंग हस्बैंड है, ठीक है उसका. और डार्क रूम क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि वो ये वही रूम है जहाँ सावित्री जाकर जो है अपने इमोशंस को रिलीज करती है, ठीक है, उसके पेंट अप फीलिंग्स को जो है वो रिलीज करती है, विच इज वाई वी कॉल इट अ डार्क रूम. ठीक है, इन फ्रॉस्ट पोम फायर एंड आइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हमने किया भी था रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाले वर्क्स में. ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स एंड हेट्रेड, है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो नफरत है, यही कारण बन सकते हैं ऑफ द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच. रानी नोज हाउ टू कंडक्ट हर सेल्फ इन सोसाइटी, है ना, कंडक्ट करना, हाउ टू कैरी हर सेल्फ, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, ये मीनिंग ये देना चाह रहा है, तो नेसेसरीली ये वर्ब हो जाएगा. ठीक है, 27th नाउ. वी हैव सीन द डेज व्हेन यू वर ऑलवेज हैप्पी. तो इधर ये बताया है द डेज, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे डेज नाउन है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है, वो दिन जहाँ आप हमेशा खुश रहते थे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट वन. नाउ हु कैन ब्लेम, वॉइस आपको चेंज करना है, हु कैन ब्लेम हिम ऑफ डिसलॉयल्टी, बाय हुम कैन ही बी ब्लेम्ड ऑफ डिसलॉयल्टी.
ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 28th, फर्स्ट वाला। 29th में हम देखेंगे टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, है ना, ले जाओ। तो यहाँ पे ओवर जो है एडवर्ब, यहाँ पे करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब रहेगा, बिकॉज ये जो ओवर वर्ड है ये मॉडिफाई कर रहा है टेक वाली वर्ब, इसको मॉडिफाई, ठीक है। तो वर्ब को जब कुछ मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्ब होता है, टेक ओवर, है ना। आई एम वॉचिंग यू, इसका क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय मी। Choose the option that correctly changes the voice in the given sentence. This sum can be solved in 5 minutes. One can solve this sum in 5 minutes. This is the most appropriate answer. Okay. Now, father said, my dear son, you must learn to follow the rules. तो यहाँ पे father अपने बच्चे को क्या कह रहे हैं, वो advise कर रहे हैं। तो father advised his son to follow the rules. स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं। सो फादर एडवाइज्ड हिज सन टू फॉलो रूल्स। ओके, नाउ 33, चूज द ऑप्शन, अगेन एक जम्बल्ड है, ठीक है, और जम्बल्ड का करेक्ट आंसर आपका मैं बता देती हूं, या फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 34 में आपको दिखेगा इधर, दिस इज अगेन नरेशन में चेंज है, यानी यू हैव टू मूव टू द प्रिसीडिंग टेक्स्ट। निशा सेड टू अनीता, व्हाई डिड यू केम लेट टुडे। तो इसका आंसर रहेगा, निशा आस्क्ड अनीता व्हाई शी हैड कम लेट that day। जब हम narration and all like when days will do grammar, then those days the concepts will be more clear and very very crystal clear, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है narration में we have to move to like jump to the preceding form of tense, ठीक है। Now choose the option which correctly fills in the blank in the given sentence. If your worker is lazy, why don't you what? Turn him off. इसमें आएगा turn him off. This is the correct answer. You cannot say turn him down. Okay? Turn him off is means to dispose, or you can say to fire, to discontinue. Okay? Now Oscar Wilde's paradox is perfectly true. Okay? Paradox क्या होता है? When you like when you say it in a paradoxical manner, the former part of the sentence is saying something in contrary, opposite, diametrically opposite होता है in the latter part of the sentence, तो एक incongruency generate करता है जिसको आप paradox कहते हैं, ठीक है। 37th देख लीजिए, opposite बताना है redeem word का, तो redeem word का opposite violate होगा exactly. Which of the following statements is not true about Shakespeare's As You Like It? So I have checked it that Rosalind falls in love with Oliver after a wrestling match. So it was not Oliver, rather it was Orlando. तो पहला ही सेंटेंस से हमें पता चल जाता है that this is the incorrect statement. The report written by a teacher accompanying a group of students on a trip to a historical place cannot include what? क्या include नहीं कर सकते वो? The number of students, ये बताना है भाई, ये तो डिटेल्स का पार्ट है। नंबर ऑफ डेज, ये भी डिटेल्स है। ब्रीफ मेंशन ऑफ द प्लेस विजिटेड, ठीक है, ये आपकी अबाउट द ट्रिप है। एक्सपेंसिव गुड्स परचेज्ड बाय सम स्टूडेंट्स, कुछ ऑप्शंस तो मतलब करेक्टली यू कैन एलिमिनेट, है ना, इजीली, आई मीन यू कैन एलिमिनेट, so this is here. Kiran at once took exception to my remark. took exception to का मतलब क्या होता है, objected to, ठीक है। किरण वंस लाइक एक क्षण के लिए, तो शी ऑब्जेक्टेड टू माई रिमार्क, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव क्रॉस चेक्ड द आंसर्स दैट यू हैव selected, ठीक है, and still you should wait for the final answer key which would be uploaded soon, ठीक है। So this was all about the analysis of the subjective and objective part of your EMRS PGT English एग्जाम दैट वाज टेकन रिसेंटली, ठीक है। सो आई होप कि आपने देखा होगा कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या था, और साथ साथ मैं आपके आगे अब मतलब आपके साथ अब एक कट ऑफ जो हमने पोल क्रिएट किया था, तो एक कट ऑफ या फिर स्कोर जो बच्चे एक्सपेक्ट
कर रहे हैं उसका भी डिस्कशन करना चाहती हूँ. सो यू नो there is hardly a difference of 5 to 10 marks in the TGT and PGT attempt. Okay, if you've gone like taken the exam for TGT or for PGT, there is hardly a difference of 10 marks. Like the same child can score this much in TGT and these many marks in PGT. So it's just that 65 to 70 के आसपास का स्कोर थोड़ा सेफ कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोल्स. रादर वी आर ऑल्सो लाइक ट्राइंग टू गेट like personally involved with the students about how their performance was and how did they do the things and how the things came up. So this all will be dealing in the subsequent sessions, and until then let's hold for the moment that what could be the exactly the safe score. अगर हम बात करते हैं तो 65 above लग रहा है, लेकिन जो subjective part है that totally depends on the nature and the intellect levels of the examiner, ठीक है. Then let's see how the things proceed. Objective part you're sure, but these many you can get in subjective also. So वो ये 65 to 70 plus तो can be considered quite safe. Okay, so this was all about the session for today, and we'll bring back the TGT part of English, like the TGT English part as well. Stay tuned for that, and keep supporting. Do not forget to like the session, because we have made some effort to bring you the solved paper. Okay, thank you so much once again.